Hi Peterson and welcome to this special IIFT exam strategy seminar. Today we will be discussing what are the key rules of attempting the IIFT paper in the most optimal strategic manner. वो क्या तरीका है जिससे हम IIFT में एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं and try and maximize our performance. In addition to the strategic inputs, I will also be solving 60 questions in general awareness from the previous IIFT test papers. ये सारे questions SRC पे examination form में test form में available already हैं. सबसे पहले a few important dates. As you can see on the screen, my dear Petersons, 24th November is the exam. Around mid-December you can expect the results. The first shortlist will contain the names to be called for GD, interview and VAT. GDPI VAT का पूरा support आपको PTSRC में मिलेगा. There is a complete section on GDPI VAT. You should refer to that, and of course we will be training you comprehensively for that. And the final result will be in January. I am very sure that a lot of you are going to make it. Now something cool, something that will make you happy. Please remember, just like the XAT, the Xavier test, the IIFT happens to be one of the best MBA entrance tests in India. See, I have been attempting these tests for more than 21 years now, and I can tell you the way the CAT graph has gone down in terms of the efficacy of the test. Mark my words very carefully. I feel that XAT and IIFT truly remain good quality MBA entrance test. Why? Why do I say so? Number one, they are paper based. I am a techno-savvy person and I love technology, but all said and done, the way an MBA entrance test should put the right kind of testing, limited time pressure on a student can just not be done in a computer format. It is when you have a test paper with no sectional time limits or maybe some macro sectional time limit, doesn't bother, doesn't matter, that you can actually check whether a student has the life skills that you're expecting him or her to possess to be an effective manager tomorrow in the big corporations that he or she seeks to be a part of. So that's point one. And point two, because IIFT does not have any sectional time limit and it has 6 sections or subsections, the student, the aspirant, really has to strategize well, because he or she can go back and forth, ping pong. And if you do that, you end up messing the test. Ab CAT mein 2 sections and you have no choice but to play within a section. And so in some sense, a person may be performing suboptimally. Remember, before I get into the nitty-gritty of IIFT, all MBA entrance tests are alike. बाहरी तौर पर ये अलग अलग दिख सकते हैं, उस पे से बहुत ज़्यादा conclusions derive नहीं करने हैं. Do not scared by the way they look on the outside, because primarily what they are checking is what you have studied. If you have studied English usage, you have studied English usage. You have studied fill in the blanks, you have studied para jumbles of all varieties, you have studied logical completion of ideas, you have every possible kind you have studied. Only thing is that the package in which it is offered to you changes. Do not worry. What is being tested now when the package changes is not your knowledge. It is how you apply that knowledge in a limited time situation when the macro rules are changed, like sectional time limits, fixed marking scheme, fixed negative marking scheme. अगर मैं ये change कर देता हूँ तो आप कैसा behave करते हैं, आप कैसा react करते हैं. अब ऐसा IIFT वाले क्यों करते हैं? बहुत सिंपल सा रीजन है. In your regular working as a corporate manager, hopefully with some of the best organizations tomorrow, every day will bring its own unique challenges. The set of rules that applied yesterday may need to be tweaked a little here, a little there, in order to make sure that they apply with the same vigor, vitality and efficacy and efficiency. This is exactly what IIFT is checking. अगर आपको बहुत डर लगता है कि IIFT का पैटर्न थोड़ा अलग है, तो मैं आपको ये बता दूं that in the 1990s CAT used to be a 240 question test. जब भी आपको डर लगे IIFT के प्रेजेंट पैटर्न से, आप ये याद कर लेना. This fact
will even out everything. Some important facts to remember. अब बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे, all the PTs who are attending the class right now and everybody who is watching it, these are the key facts. The very first one, the CAT of today has 60 questions, 2 sections, कोई चॉइस नहीं, 70 minute fixed computer format. IIFT has 120 to 135 questions, फिक्स नहीं है, कितना भी आ सकता है, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, फिक्स नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो. 150 भी आ जाएं तो डरना मत, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग द सेम सिचुएशन. टोटल 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स हैं, 120 to 135 क्वेश्चंस इन अ पेपर पेंसिल फॉर्मेट. ये सबसे पहला चेंज है, यू नो इट, बट आई एम रिपीटिंग सो दैट just before the exam you get your mindset and your strategy perfectly crystal clear. Second, CAT is a 140-minute test, IIFT is a 2-hour test. तो 20 मिनट वहां कम हो गए, क्वेश्चन बढ़ गए. जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो आपको आते हैं या आपको नहीं आते हैं. If you know a certain capital or a certain currency, well, you know it. If you don't, well, you don't. So usually GK questions can be cracked in 12 to 15 seconds each, maximum 20 to 25 seconds each. That is why the increased number of questions which you see is practically not of a lot of value. CAT has a fixed marking system, at least that's what we are told, but because of that huge complicated opaque normalization that they follow, I really cannot comment. But IIFT has a varying marking system from 0.5 to 1 and usually carries 33% negative marking. So my advice to you, my dear friends, is unless you can zero down on 2 options, जब तक आप बिल्कुल 2 options पे clearly zero down नहीं हो गए कि out of these 4 or 5 options I know that 3 are wrong or 2 are wrong and these are the 2 correct, तब तक तुक्का मत लगाना. But if you have really zeroed down on 2, it is strongly advised कि you must make an intelligent guess there. Very important. I hope that's clear. No OMR sheet to be filled. बस क्लिक करो, काम खत्म, आगे बढ़ो. IIFT wants you to fill OMR properly. अच्छे से 2 HB पेंसिल शार्पन करके साथ में लेके जाइएगा, प्रॉपरली फिल कीजिएगा. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत हल्का भी नहीं करना है. शीट को फाड़ मत देना, रिजेक्ट हो जाओगे. How should I fill the OMR? Question by question by question or section by section by section? My advice always is section by section by section. देखिए, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आया है, अब आपको करना क्या है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा. द स्कैन सर्च सिलेक्ट सॉल्व अप्रोच विच इज द ऑप्टिमल एंड द बेस्ट अप्रोच. द मोमेंट यू हैव सॉल्व्ड वन सेक्शन यू मस्ट इमीडिएटली फिल द आंसर्स करस्पॉन्डिंगली. क्योंकि क्या होता है कि अपनी धुन में हम भूल जाते हैं कि समय निकल गया है, एंड बाय द टाइम वी रीच द एंड देयर इज अ कंप्लीट पैनिक. एंड द बिगेस्ट ट्रेजेडी वुड बी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो हो सकती है कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व करके OMR में हड़बड़ी की वजह से गलत मार्किंग कर दें, इम्प्रॉपिंग मार्किंग कर दें, हल्की मार्किंग कर दें, या घबराहट में उसको फाड़ ही डालें. 10 पहला सेक्शन खत्म हुआ, जो भी था पहला सेक्शन आपका, मैथ्स था, लैंग्वेज था, जीके था, जो भी था, उसमें आपने मान लीजिए 17 क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरे 17 ट्रांसफर कर दो. क्लोज द चैप्टर देयर एंड देन इटसेल्फ. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, प्लीज फॉलो इट. इफ यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, go ahead, follow it, but you should have a good logic for that. IIFT has GK, CAT has no GK directly. फायदा ही हो गया एक तरह से, इतना GK पढ़ा है PT में आपने. You have done 30 knowledge booster sessions so far. We have had 30 full-fledged knowledge booster session from a set of 35. Before IIFT 30 कर लिए हमने. Plus we have the complete GK CA builder inside the SRC. Plus you have one full prep talk every month. यार इससे ज्यादा तो IIFT वाला भी कुछ नहीं पूछ सकता. आप केवल आपके नॉलेज बूस्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना जाने के पहले, और आज मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं प्लस IIFT के जो हमने सेक्शनल टेस्ट डाले हुए हैं GK CA बिल्डर में, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. यही है बस जो है, इसको रिवाइज कर लो अच्छे से. CAT has 2 sections, IIFT has 6. क्या फर्क पड़ता है, सब भी पढ़ा है ना. माइंडसेट नीडेड इन IIFT स्लाइटली डिफरेंट. आई होप दीज क्रूशियल फैक्ट्स आर क्लियर. बट ओवर एंड अबव एवरीथिंग, डरना मत. एज दे से डरना मना है. As they used to say, जो डर गया समझो मर गया, literally, because when you're absolutely free in your mind and you know that I have studied so I will perform well, performance अच्छा नहीं है.
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। सारे सेक्शंस हैं जो आपने पढ़े हैं, कैट में यही सब आता है। ओनली थिंग इज कि वहां पे वो 2 सेक्शन में दे देता है, यहां पे आईएफटी आपको बोलता है भाई मैं 6 सेक्शन में पूछूंगा। क्या फर्क पड़ेगा? हमने भी बात की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट विद द जीके सेक्शन फर्स्ट एंड ट्राई टू फिनिश इट ऑफ वेरी वेरी क्विकली, जस्ट द एडवाइस दैट वी हैड प्रॉफर्ड ड्यूरिंग द CMAT थिंग एंड मेनी ऑफ यू डिड वेरी वेल। डिफरेंशियल मार्किंग सिस्टम एग्जिस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स होंगे, ध्यान रखिएगा। रीड द डायरेक्शंस वेरी केयरफुली ट्वाइस। अब 2 घंटे का समय है तो थोड़ा सा कटिंग थिन तो है, स्पीड ज्यादा रखना, रात को नींद अच्छी लेके जाना, सुबह बढ़िया नाश्ता करके जाना, एंड बी मेंटली वेरी एग्रेसिव, पुश योरसेल्फ, डोंट बी लेथार्जिक, डोंट बी लेट बैक, यू हैव टू पुश। और दिमाग को बिल्कुल भटकने मत देना यहां वहां, इवन फॉर अ सेकेंड। फोर्स इट टू फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन से फर्क पड़ेगा बॉस। यूजुअली द मैक्सिमम मार्क्स आर रिजर्व फॉर द क्वेश्चंस दैट अपीयर इन क्वांट्स एंड डीआई एंड द मिनिमम आर यूजुअली फॉर इंग्लिश एंड जीके। हाउ बैड ना दीज आईएफटी पीपल, बट दैट्स हाउ इट इज। तो जो भी है सबके लिए है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है। नाउ इफ यू आर गुड एट मैथ्स, दैट इज क्वांट्स एंड डीआई, गुड न्यूज फॉर यू। But anyway, as I said, because it gets average out over everything, fine. I hope these facts are clear. तो ध्यान रखिएगा 6 सेक्शन आएंगे, डिफरेंशियल मार्किंग है तो एक बार अच्छे से देख लेना जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसका एक्चुअली मार्क कितना है, और फाइनली क्वांट्स डीआई में मैक्सिमम है, इंग्लिश जीके में कम है। तो सर करूं कितने, एक अच्छा अटेम्प्ट रेट क्या होगा? देखिए पिछले 4 सालों में आईएफटी की टफनेस लेवल में बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले वो काफी टफ आया करता था, बट जनरली स्पीकिंग कट ऑफ जो हैं पिछले कुछ सालों में कम होते गए हैं, बढ़ते गए हैं। कट ऑफ्स क्यों बढ़ते हैं? वाई डू दी कट ऑफ्स गो अप? यूजुअली whenever the tests start getting easier, automatically the cut off start going higher. अगर पिछले सालों जैसा ही कट ऑफ रहा तो you can definitely expect that you will have slightly higher cut offs this year. I hope that is very very clear. 60 मार्क्स का टारगेट कम से कम लेके आप चलना, so you will be on the safe ground. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत ज्यादा सोचना मत एग्जाम के दौरान, बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना। सम पावर टिप्स फॉर आईएफटी। अब कुछ बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, ध्यान से समझिए। जैसे ही पेपर हाथ में आए सबसे पहले क्या करना है? 50 बार मैं आपको बता चुका हूं, with 21 years of my experience, without a second thought I can advise, scan, search, select, solve, SSSS। पेपर जैसे ही हाथ में आए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू नहीं करना है, आखिरी से भी नहीं करना है। बी रिलैक्स, 30 सेकेंड्स, जस्ट स्कैन थ्रू इट, जस्ट सी दिस पर्टिकुलर एटम बॉम्ब विच हैज हिट यू, ये है क्या? देखो एक बार, पलटो पन्ने, अच्छे से देखो। मेंटल एग्रेशन रखना, रिलैक्स रहने का मतलब ये नहीं कि हम कैजुअल हो जाएं, एग्रेसिव रहना है पर रिलैक्स्ड। पलट के देखो पूरे सेक्शंस क्या हैं, और आप घर से स्ट्रैटेजी बना के गए हो। यू हैव गॉन टू द एग्जामिनेशन हॉल विथ अ प्रायर स्ट्रैटेजी रेडी विथ यू। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेकेंड सेक्शन में क्या करूंगा, थर्ड सेक्शन में क्या करूंगा या करूंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फ्रैंकली, scan, search, select, solve cannot help you decide which section you should do first. That is something you decide beforehand. कैसे डिसाइड करूं? यार इतने महीनों से जो तुम तैयारी करते आ रहे हो, तुम यही तो डिसाइड करते आ रहे हो। ये पहले से तय करके जाओ कि आउट ऑफ दीज 6 सेक्शंस मेरा आइडियल ऑर्डर क्या होगा। इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस यू मे चूज टू चेंज दैट ऑर्डर, अदरवाइज द ऑर्डर रिमेन्स व्हाट यू हैव डिसाइडेड। तो फिर इसका फायदा क्या? इसका फायदा यह है कि इट फेमिलियराइजेस यू विद द होल थिंग एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ड्रास्टिकली रिड्यूसेस, सो योर कंफर्ट लेवल विद द होल पेपर गोज अप सब्सटेंशियली। दैट इज द आइडिया। समझ गए? तो ये जरूर करना। कितना टाइम दो इसको? 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 seconds, 60 seconds. Good enough. Spread yourself over all the sections as per a clear strategy. Don't panic and don't move back and forth. You know the worst you can do is, यार मैं मैथ्स पहले कर लेता हूं, चालू किया क्वांट्स, 4 क्वेश्चन बनाए, नहीं यार मैं जीके पहले करता हूं, भागे जीके पे, 7 क्वेश्चन किए, नहीं यार मैं लैंग्वेज पहले करता हूं। You know, you might as well stop doing it now because anyway you're out of the race. Generally speaking, unless you're a genius who can crack anything by shifting gears randomly. Most human beings, even the bright ones,
cannot keep shifting gears randomly and keep performing. Our mind needs to be set in a certain mold of thinking. अब आप जीके कर रहे हो तो वो जीके के मोल्ड में चला गया 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसको उसी मोल्ड में रखो, ऑप्टिमल रहेगा परफॉर्मेंस. उसके बाद लैंग्वेज के मोल्ड में हो तो लैंग्वेज में चलो, फिर क्वांट्स के मोल्ड में हो तो क्वांट्स में चलो, फिर रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के मोड में हो तो उसी मोड में चलो. दैट्स व्हाई यू शुड स्प्रेड योरसेल्फ ओवर द सेक्शंस. पहले से घड़ी देख के तय कर लो 2 घंटे में कितने मिनट में किसको दूंगा. पेपर के पहले शीट पे लिख लो, ऑन द वेरी फर्स्ट शीट और द लास्ट शीट, वेरेवर यू फाइंड सम स्पेस, राइट डाउन. ये हैं 6 सेक्शन, ये टाइम में देने वाला हूं, और उसको रिलीजियसली 90% तो फॉलो कर लो. 10% ऊपर नीचे, इट्स ओके. दैट्स सिचुएशनल इंप्रोवाइजेशन, वी आर ओके विद इट. डोंट पैनिक एंड डोंट मूव बैक एंड फोर्थ. दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू. इफ देयर इज वन एडवाइस which holds above everything else for IFT, don't panic. Don't move randomly back and forth. You will completely kill your chances. Promise me you won't. Promise yourself you won't. Third, I have to score 60 marks plus. ये बार बार रिमाइंड करो खुद को और करते चलो, डरना मत और मार्क्स जोड़ते मत बैठना, अपने आप होगा. Easy questions first, tough later. This has been a very standard advice from day one. अब इसमें कैच ये है that the tough questions usually carry more marks. I understand, but if you choose to do the whole paper in rounds, for example, GK section सबसे पहले लिया, hypothetically, suppose you take GK section first. Pick up the easiest questions first. Do those 50% of the GK questions which you think are easiest first. जो बच गए टफ हैं, second round में आओ. So you can solve each section in rounds, first round, second round, and worst case third round. Don't at all get stuck anywhere. कोई भी एक क्वेश्चन है या सेट है DI का and you get stuck, नहीं बन रहा है, छोड़ दो, dump it. You very well know the meaning of dumping, so no point explaining that. All question types have been covered in PT material. I guarantee you that you will not have any set which is different from what we have covered. That's my guarantee to you. ठंडे दिमाग से सोचना, कहां किस बुकलेट में कवर किया था, सब याद आएगा. घबराओ मत, सब कुछ हो चुका है. अब कुछ भी नया स्टार्ट मत करना. Do not get started on any new topic right now. There is no time for it. तो एक बार अच्छे से सारी पावर टिप्स देख लो. These followed meticulously should help you get 15 to 20% more score, more in your score, more marks than otherwise. What about GK? अब GK section पे बात करते हैं. We have given you the maximum possible support of all the institutions in India. We have had more than 30 knowledge booster sessions so far. हर सेशन में आपको मैंने डिटेल नोट्स लिखवाए हैं, पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर लिया है. 2G स्कैम, Colgate scam, food security bill, India's missile development program, complete Euro crisis, 2007 housing crisis of America. We have covered everything in depth with written notes, facts, figures, data, and a 30 to 35 question quiz after every session. सारा रिवाइज कर लो, इसी में से आना है. करो अच्छे से, तुम्हें खुद एग्जाम के दिन दिखाई देगा. 9 special GK IIFT tests are there in the GK CA builder on SRC. मैं अभी स्नैपशॉट भी दिखा दूंगा. In case you haven't, 4 से 5 घंटे में सारे सॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद एनालिसिस कर लो उसका ऑनलाइन. Solve all the sample test in the SRC. Revise the prep talk issues given in the SRC Student Resource Center. इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं. This is the home page of SRC. आप लॉग इन करते हैं तो this is where you go. अब इसमें 2 sections important हैं. The first one is GK CA builder. You go here and you will find this. This is the PT's GK CA builder, right? In this GK CA builder, you have the 9 tests on IIFT. All the questions asked in the previous years are covered here, plus many more on the same model. इसको ढंग से कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा. तो टेंशन लेने ही कैसा. This should more or less take care of it. The second important section is exam strategy booster. This is the exam strategy booster section. Remember, my dear friends, this seminar you are watching has been uploaded there only.
इमीडिएटली आफ्टर IIFT एग्जाम इज ओवर ऑन संडे, उस रात को भी हम इस पे पूरा एनालिसिस उसका डाल देंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स आर एनालिसिस, वो आप देख लीजिएगा. एंड वी हैव गिवन यू अ शेड्यूल फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, दैट एंड ऑल अदर इंक्लूडेड exam analysis and post exam strategy, exam strategy and post exam analysis. This is the tab for that. I hope this more or less explains everything to you now, and I hope all of you, just before I get down to the GK questions, have downloaded the static GK book from here. देखिए, SRC is a treasure trove of testing, information and support. You should use it. जीके में जो सपोर्ट पीटी ने कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिया है, किसी ने नहीं दिया है, आप उसे यूज करें. ये तो रेगुलर टेस्ट आते ही हैं. अभी टेस्ट नंबर 187 तक के अपलोडेड हैं, ईस्ट ऑफ मोर देन 70 क्वेश्चंस. जितना करना है सब कर लीजिए. एंड IIFT इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इसके आगे और बहुत सारे टेस्ट हैं. आई थिंक नाउ बिफोर वी राउंड अप एवरीथिंग, we will take up a few questions of GK from the previous years. बाकी के sections हम आज इसलिए cover नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने we have covered it at length in our percentile booster sessions and of course in our regular Pinnacle course. So let's get started for the GK questions. Are you all ready? Yes or no? Yes? I will take up 60 questions. मेरा aim क्या है? ये 60 questions लेने में मेरा aim ये है my friends, that what is the variety and the type. अब कोई गारंटी तो है नहीं कि इस साल भी ऐसे ही आएंगे, बट नॉर्मली दे वुडंट चेंज. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माय डियर स्टूडेंट्स. दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन ऑफ IIFT. बेसिकली व्हाट इज ही ट्राइंग टू चेक? He wants to know whether you have been following some of the leading economic publications, like financial publications like Economic Times or Mint or The Economist, and some websites which tell you of the recent developments. Now this is definitely not a recent development, it's a development that happened a few years ago, but it's a very representative question. The answer to this one is third. जितने भी ऐसे mergers and acquisitions पिछले एक साल में हुए होंगे, फटाफट उस पे से नजर निकाल देना और उसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी टिपिकल IIFT क्वेश्चन, ऑथर्स एंड बुक्स. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम. चांसेस आर यू नो वेरी वेल one book Nandan Nilekani wrote, Imagining India. Suppose you know some other, for example you know that APJ Abdul Kalam wrote a vision for the new millennium. Even if you have one clue, first of all go to that clue. Ab as a student I know that Nandan Nilekani, who is the head of the UIDAI project right now, as you know very well, and the controversy surrounding it, that the Supreme Court said you cannot make Aadhaar ID mandatory because Aadhaar has no legal backing, and so the government in a haste is now creating the ordinance and the legal backing for Aadhaar. Anyway, so Nandan Nilekani wrote Imagining India B1. अब चेक कर लो B1 कहाँ का है. ऑप्शन 2 and 3 are ruled out. बच गए ऑप्शन 1 and 4. B1. अब चेक करो A3 B2. नारायण मूर्ति, A Better India, A Better World, and A2 Remaking India. अब if you have no clue, अगला चेक करो C2 C3. रतन टाटा, रीमेकिंग इंडिया, अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड. उसमें भी क्लू नहीं है. D4. अब D4 तो फिक्स है दोनों में. सो दिस इज हाउ यू शॉर्ट लिस्ट. अब इफ यू आर अनलकी यू डोंट नो फाइनली, बट द फाइनल आंसर इज 1. A3, B1, C2, D4. आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू द अप्रोच. आई होप द अप्रोच इज वेरी क्लियर. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इफ यू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, again it is fairly similar to the mergers, acquisitions, takeover and the branding wali questions that was the very first one we took today regarding Arcelor. Here the answer is 4th. Now such questions have a problem. If you know it, you know it. You don't. Nothing can be done about it. 4th, काफी बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत इजी बना दिए उन्होंने. अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, वी नो वेरी वेल हैंग सेंग इज फ्रॉम हांगकांग. टोक्यो का है निकी,
हांगकांग का है हैंग सेंग, लंदन का है फुटसी, इंडिया का है निफ्टी या सेंसेक्स एक्सेट्रा। A3, अब A3 तो एक में ही है, फोर्थ आंसर शुड बी 2, A3, B1, C4, D2. अब you are very lucky it's only one, A3, hence answer is 2. I hope you're getting some idea. Okay, question 5. Which is the correct legal act and the jurisdiction match? अब इसको ध्यान से देखिए, फिफ्थ को। फिफ्थ says you have, मान लो आपको कुछ भी क्लू नहीं है, ये क्वेश्चन फिर भी सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, सेबी एक्ट, फेमा एक्ट। कंपटीशन एक्ट क्या करता होगा ये? देखो 1 2 3 4 यही कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। तो B3 इज द आंसर। अब B3 तो एक में ही है, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। Yes, it is that simple. So you see B3 and that is the answer. Competition Act, थर्ड प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स, और इनफैक्ट इसी ने DLF पे फाइन लगाया था, इसी ने जेट एतिहाद डील को लास्ट मोमेंट पर रोका, एंड CCI हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट in any major corporate deal in India now, and in America and Europe this is called antitrust, as we have discussed in our knowledge booster. So B3, A2, B3, C4, D1, option 1 is the correct answer. ये सारे क्वेश्चन मैंने PDF फाइल में एग्जाम स्ट्रेटेजी बूस्टर जहां वीडियो है उसी के ऊपर लिंक पे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। सिक्स्थ, वेरी टिपिकल IFT क्वेश्चन, मैच द प्रेसिडेंट, कंट्री, करेंसी। द वेरी फर्स्ट वन, Francois Hollande, that's the name itself. As they say, the French don't mind what you do to them as long as you can pronounce it correctly. So Francois Hollande, France, A11, रशिया का तो है नहीं, A32, जर्मनी का है नहीं, A42, गुड, और यूरो है। ऑप्शन 1 and 2 are ruled out. So we are left at option 3 and 4. अब आगे चेक करो B11, तो ये तो सेम है, तो ये तो है ही। अब आगे आ जाओ C23, C34, C23, C34. Now Yoweri Museveni obviously cannot be a German name. नाम देख के समझ में आता है यार कि जोशिम गॉस्क has to be a German. This guy Museveni cannot be a German, right? So the answer obviously will be what? Answer will be obviously option number 3rd. I hope that's clear. So you have A42, B11, C23, that's Uganda and Shilling, and finally you have Joachim Gauck, who is given to us Germany and Europe. Don't confuse with Angela Merkel, she is the chancellor. Here we are talking about the president. It's a nominal post in Germany, please remember. So sixth answer was 3rd. 7th, a slightly difficult one, in fact a definitely difficult one. When I talked about the scan, search, select, solve technique, this is what I meant. You can leave such questions in the first round. ये बिल्कुल easy नहीं है, because of a very very simple reason, that he says you have to match this with this and pick up the option in which everything is wrong, not correct, wrong. Now if you look at it, कैसे start करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन 1 B2, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन इज रॉन्ग, इट शुड बी एनवायरनमेंट। अब B2 तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये दोनों हो सकते हैं। अगला चेक करो C3, टैफ्टा, ट्रांस अटलांटिक फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इट इज ट्रांस अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो C3 इज रॉन्ग, आंसर हैज टू बी 1, खत्म। अगर दो भी पता है तो काम हो जाता है, बट दिस इज नॉट ईजी। अब जैसे I9 बोल रहा है एसोचैम, तो इट्स एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें ट्रेड नहीं आना चाहिए। सो दिस इज वेयर IIFT is really checking whether you have had a fine eye for detail. Okay, move on. 8th. So who was not nominated on the board of Satyam when it was taken over with government intervention and privatized, so that the whole thing does not collapse and bring a bad name to the entire Indian IT sector? Obviously the answer has to be this. For those who know a little bit of history of Indian stock market, you know that this guy cannot be nominated by the government because he was involved himself in a bull scam
on the stock market? Answer is 2. Question number 9. आप नॉलेज बूस्टर याद कर लो. यूएस हाउसिंग स्कैम 2007 जो मैंने आपको पूरा बताया था, यूएस हाउसिंग एंड फिस्कल कोलैप्स, इट रिवॉल्व्ड अराउंड सीडीएस एंड सीडीओ. हमने पूरी बात की थी कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स पर. दिस इज व्हाट सीडीएस इज. जो जो आपको पढ़ाया है रिवाइज कर लेना अच्छे से, उसी में से आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 पे आ जाइए. टिपिकल मैचिंग. दिस इज वेरी टिपिकल आईएफटी और इनफैक्ट इजी है, डरना मत. कंपनी और ब्रांड के साथ आपको मैच करना है 10th में. देखिए अब चेक कर लो. महिंद्रा, यू नो वेरी वेल महिंद्रा हैज टू बी Xylo. एग्जामिनर ऑल्सो नोज दैट यू नो दैट महिंद्रा हैज टू बी Xylo. 3 में दे दिया तो बड़ी मुश्किल कर दी. ऑप्शन 1 तो हटाओ, तुक्का भी नहीं लगा सकते, पर 33% तो गया. अब A4 है. आगे आओ. टाटा, लैंड रोवर, जेटा. We know very well Tata has purchased Land Rover, and so B has to be 1. But again the problem is 1 is there in 2, तो 4 को हटा दो. अब बच गए 2. तुक्का लगाना है तो अब लगाओ, ठीक है ना. अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप अब तुक्का लगा सकते हो. B1 which is Tata Land Rover. अब उसके बाद चेक करो C2 D3 या C3 D2. टोयोटा, जेटा एंड वोक्सवैगन Lexus, और Toyota, Lexus, Volkswagen, Jetta. You know very well the correct answer is for 10th option 3rd. I hope that's clear. मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, अप्रोच को बहुत ध्यान से समझते चलिए. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Once again we have to match the slogan with the company. चेक करते चलो अच्छे से. He says slogan and company. Philips is known for making equipments which work beautifully and simply. Let's make things better. Philips. A2. अब ये पता है, examiner knows that you know it. That's why he has given it in 3. ये कई बार होगा. The easy things will appear in more than one option, but that's okay. अगला चेक करो for 11th. If you check the next one, you find that technology you can trust. Sponsors of tomorrow, that's Intel. C4. So for 11th, check out A2, C4. 2 ही जगह आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन 3 में. बाकी का चेक कर लो. B1 टेक्नोलॉजी यू कैन ट्रस्ट, HP, एंड D3 योर पोटेंशियल आर पैशन. इस पर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग टीवी कैंपेन भी चलाया था एक बार 2 साल पहले. द करेक्ट आंसर हेंस फाइनली इज ऑप्शन 3. आई होप दैट्स क्लियर. सो लेट अस मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट वन. 12th. IIFT है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो पूछेगा ही. क्या लगता है आपको? इफ यू नो दैट मॉरिशस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रूटिंग चैनल्स फॉर FDI इनटू इंडिया, देन यू नो दैट फॉर 12th द करेक्ट आंसर हैज टू बी 2. द आंसर इज, मैं जो क्लूज देते जा रहा हूं समझ रहे हो ना. नेक्स्ट देख लीजिए. नेगेटिव इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेशन. दिस इज व्हाट Japan has been suffering for more than 20 years now. Who is the Prime Minister of Japan right now? Shinzo Abe. He has brought a 3 arrows. He says, I have 3 arrows, the 3-point plan, in which one of the biggest options, one of the biggest actions is that the Central Bank of Japan has to bring back inflation of at least 2% in the economy. So anyway, let's restrict to this. Negative inflation is also called deflation. A little bit of inflation is always good in an economy because it indicates some kind of a movement and growth. 14th. बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आपको आंसर पता ही है. यहां का आंसर तो आपको पता है, बट ट्विटर के फाउंडर्स के नाम जरूर देख लेना. ट्विटर का IPO आया है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है. लिंक्डइन के फाउंडर्स के नाम चेक कर लेना, बिल्कुल आएगा. ध्यान रखना, रीड हॉफमैन, दूसरों के नाम चेक कर लेना. ऐसे जितने भी लेटेस्ट IPOs जो भी आए हैं इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स के नाम अच्छे से चेक कर लेना, द बंसल्स. स्नैपडील के फाउंडर्स के नाम अच्छे से चेक कर लेना. स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया. 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. ये फेवरेट है IIFT का. आई रियली होप दे आस्क यू बिकॉज आई एम श्योर यू वुड बी रेडी. 15th पे आ जाइए. विच ऑफ दीज डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नवरत्ना? देखिए, नवरत्ना इज द रैंक जस्ट बिलो महारत्ना. फॉर एग्जाम्पल, कोल इंडिया लिमिटेड इज महारत्ना. दुनिया की सबसे बड़ी कोल मेकिंग कंपनी है और इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो कोल इंडिया लिमिटेड तो महारत्ना हो गई. नवरत्ना इज बिलो दैट. कैसे सॉल्व करूं? कंपनियां देखो यार,
खुद सोचो, विच ऑफ दीज 4 सेक्टर्स इज नॉट डूइंग वेल इन इंडिया? स्टील बहुत अच्छा चल रहा है बड़े स्केल पे, ऑल्दो द कंपनी मे नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल. ऑयल तो स्केल बड़ा ही है, वी आर ऑयल गजलर्स ऑल ऑफ अस. मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द थर्मल मोड ओनली इन इंडिया यूजिंग कोल एंड ऑयल. तो बचता क्या है? Hydropower has failed to take off in India because of a lot of factors, geographically difficult terrains and so on and so forth. तो अगर हाइड्रो पावर ही इंडिया में ज्यादा नहीं उठ पाया है तो NHPC कैसे उठ पाएगा? And hence this is the odd one out. Answer is this. आपको ट्रिक समझ में आ रही है? बस ये ट्रिक लगाना, जहां जहां हो सके लगेगी. 16 पे आ जाइए फटाफट. Which one of the following statements does not relate to the concept of carbon credit? अब ये थोड़ा सा टिपिकल है. देखिए, ऑप्शन 1 एक्चुअली डिफाइंस कार्बन क्रेडिट. फॉर 1 ton of carbon dioxide emission reduction, a company receives a carbon emission certificate which can be treated like any other commodity. इसी को moral hazard कहा गया था यूरोप में, that you are actually giving a license to criminals that you can apparently reduce your crime and somebody else goes and buys a certificate to do that crime. But the morality part apart, 1, 2, 3 are right and 4th actually is wrong. In this question, unless you know this concept of carbon credit, it is difficult. So option 4 is the correct answer. I hope that is clear. 17. India signed the Kyoto Protocol. As you know very well, greenhouse gas emissions, ozone layer depletion issues, etc. have been quite perturbing over the past few years. The climate debate as of now has gone in a limbo because the energy debate has become more important. But anyway, the answer to this is option 3rd. 18th, आप पूरी वैरायटी देखिए क्या क्या आती है IFT में. फिर से आगे कॉलम मैचिंग करो. 18th में मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी. ध्यान से देख लीजिए, कॉलम ए में ऑथर्स हैं या थिंकर्स हैं, मैनेजमेंट थिंकर्स, तो कॉलम बी में उनके कॉन्सेप्ट्स हैं. ध्यान से देख लीजिए. सी के प्रहलाद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरुज इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड. सी के प्रहलाद वॉज प्राइमरली नोन फॉर व्हाट? अब सपोज आपको पता ही नहीं, छोड़ दो. एल गोर तो सुना होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 10 years ago. Al Gore, more than 10 years ago, Al Gore was known for climate change and global warming. इन्होंने मूवीज भी बनाई हैं, बहुत फेमस रहे हैं उस वक्त. उसके बाद ठंडे पड़ गए. C2 कहाँ है? चेक करो, एक ही जगह. कहानी खत्म. केवल ऑप्शन 2 में है C2. एंड A4 बिल्कुल सही है, कोर कॉम्पिटेंस. B3 पॉल क्रुगमैन, इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल ठीक है. D1 अमर्त्य सेन, कैपेबिलिटी एंड इक्वालिटी. इनफैक्ट एक और क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लो. प्रोफेसर जगदीश भगवती versus Professor Amartya Sen, the big debate about opportunity versus redistribution of resources. Professor Amartya Sen believes that redistribution of resources is the way to achieve equality. Food security bill, compulsory right to education bill, etc. Professor Jagdish Bhagwati, the classical opponent of Amartya Sen school of thought, says that no, you create opportunities, don't go for redistribution of resources. This is a huge debate going on. इस debate पे question आ सकता है, ध्यान रखना. But anyway, 18th का हमने देखा, आंसर था 2nd. 19th पे आ जाइए. Match the women CEOs with the company. Now, these 4 have done a wonderful job. We know that. Kiran Majumdar-Shaw, all of us know. बायोकॉन, वहीं से शुरू करो. D3 एग्जामिनर को भी पता है, आपको पता है. ऑप्शन 2, 3 में 1 और 2 को उड़ाओ, तुक्का लगाना है तो 2 और 3 के बीच में लगाना. 1 और 4 को बिल्कुल इन्वॉल्व मत करना, इतनी अकल रखना. और है 2 और 3, D3 है, बाकी का चेक कर लो. इंदिरा नूई, यू नो वेरी वेल, पेप्सिको. तो आ जाओ C4. अब एग्जामिनर को भी पता है कि आपको पता है, उसने फिर वही किया. तो फाइनली ए और बी से आंसर निकलेगा. शिखा शर्मा, वी नो, इज एक्सिस बैंक. So definitely our final answer becomes option 3. Is that so? Exactly. Answer 3. Question 20 पे आ जाओ. Company and the place of origin. अब यहाँ पे हम सबको पता है because of the Nokia crisis recently that Nokia is a Finnish company. So B1 चेक कर लो. दोनों गए, ये 2 बचे. अब इसमें आगे चेक करो. A2 तो दे ही दिया, तो टोयोटा जापान एंड नोकिया फिनलैंड गया. अब इन दोनों में चेक करना है. वी नो वेरी वेल, LG इज वन ऑफ द शेबोल्स ऑफ कोरिया. शेबोल्स मीन्स लार्ज फैमिली ओन्ड बट प्रोफेशनली मैनेज जाइगेंटिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. लकी गोल्ड स्टार, LG, डेवू बंद हो गया, Hyundai, सैमसंग. तो LG इज फ्रॉम साउथ कोरिया विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वर्सेस नॉर्थ कोरिया विच इज अ कम्युनिस्ट कंट्री. किम उल सुंग ने फाउंड की थी. उसके बाद आगे किम,
जोंग इल, उसके बाद आ गए किम जोंग उन, ये 3 नेता रहे हैं नॉर्थ कोरिया के। सो इस केस में फॉर क्वेश्चन 20 आवर आंसर इज 1। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। जीके हर तरह से काम आता है, आप ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें, जीके काम ही आना है, कभी वेस्ट नहीं होना है। 21, भारत के पहले स्टैंप पे क्या दिखाया गया था? ऑब्वियसली इंडिया का फ्लैग ही दिखाएंगे ना, और क्या दिखाएंगे? आंसर इज 1। 22, विच ऑफ दीज हैज होस्टेड द समर ओलंपिक गेम द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? आंसर इज लंदन। याद रखना, लंदन वॉज द कॉलोनियल पावर, मैक्सिमम यूज किया है उन्होंने उस पावर का अपनी उस जमाने में। इससे याद रखने में आसानी हो सकती है इफ इट हेल्प्स इन सम एक्सटेंट। 22 द आंसर इज 3rd। आइडियली तो समर और विंटर ओलंपिक गेम एक ही होने चाहिए, बट फाइन। 23rd, what is the good estimate for the length of the coastline of mainland India? देखिए, India also has Andaman and Nicobar Island which substantially add up to its coastline. Mainland India, टोटल इंडिया का याद रखना 7500 किलोमीटर है, इससे कम एक ऑप्शन होगा, बस वो आंसर है। इट शुड बी क्लोज टू 6000, 56, 57, क्लोजेस्ट ये है, दिस इज योर आंसर। अगर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह सब ऐड कर लेते हैं तो 7500 हो जाता है, एंड 7500 इज एक्चुअली अ बिग कोस्ट लाइन वी हैव। 24th पे आ जाइए प्लीज। Which treaty led to the creation of the single European currency, euro? Very obvious, the answer is Maastricht Treaty. Europe has had a very troubled history. Europe has had a very troubled history over the several hundred year period from 1600 till 2000. Europe has seen fratricidal and internecine conflict. बहुत ज़्यादा इस तरह के झगड़े और internecine conflicts हुए हैं। ये समझते हुए ही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1950s में बनाई गई थी। बट एनीवे, वो एक लंबा लेक्चर है अपने आप में, जो हमने यूरोपियन क्राइसिस के समय कवर किया था नॉलेज बूस्टर में। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी इज द आंसर, ये कवर कर चुके हैं हम उसके अंदर। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन IIFT। ये क्वेश्चंस वो हैं जो तकलीफ देने वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। इसका आंसर है 1, सिम्पसन इंडेक्स। इफ यू नो इट यू नो इट, इफ यू डोंट यू डोंट, कुछ नहीं कर सकते। 26, मैच द कॉलम्स। अब ध्यान से देख लीजिए कौन से कॉलम मैच करने को ये बोल रहा है। 26 में यू हैव द मेमोयर और द ऑटोबायोग्राफी इन कॉलम 1 एंड द पर्सन ऑन हुम इट इज बेस्ड। अब इसमें बड़ी सिंपल सी क्लू देता हूं, एवरी सेकंड काउंट्स। ये सेकंड नहीं होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। एवरी सेकंड काउंट्स ऑब्वियसली हैज टू बी रिटन बाय लैंस आर्मस्ट्रांग, एन एथलीट। बाकी and because of the nature of the sport that he was in, so D has to be 2। चेक कर लो, तो D2 इसमें 1 2 3 4 कर दिया ऑप्शन में, should be ABCD but doesn't matter, तो D2 आंसर should be 4th, that's the answer। 27 पे आ जाइए। Which of the following is not one of the millennium goals? क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, MDGs जो थे यूनाइटेड नेशन ने बड़ा एम्बिशियसली बनाए थे, पूछा यह गया है इज नॉट ट्रू। देयर आर 8 MDGs, ये तो बिल्कुल सही है, तो 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 गलत। द ईयर सेट फॉर अचीविंग इज 2020, नो 2015 है, तो ऑप्शन 2 गलत है, तो मतलब 2 है आंसर। 1 हो सकता था लेकिन 1 सही है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 3 भी गलत होगा क्योंकि वो 2 and 3 है ना। Third, exactly, environmental sustainability is not one of the MDGs. MDGs actually are focusing on human rights, human values, poverty reduction, illiteracy removal, food availability, etc., drinking water, male-female equality, stuff like that. Millennium Development Goals. I hope that is clear. 28th. Match the country in column with its capital with the final currency. बहुत ही टिपिकल IIFT क्वेश्चन है, जैसा हम बार बार देख रहे हैं और बोल रहे हैं। और 28 को ध्यान से आप सॉल्व कीजिए, कोई एक क्लू इसमें क्रैक करने की कोशिश करो। ऑप्शन देखो, सबसे पहले 1D4 1B1। 1D4 सेज हंगरी बुडापेस्ट, अब ये बिल्कुल सही है, तो हंगरी बुडापेस्ट फॉरेन, ये बिल्कुल सही है। 1D4 इज डेफिनेटली करेक्ट, लेकिन सवाल ये है कि 1 होगा या 2 होगा, इसको चेक कीजिए। 2A1 2A2, ईरान, तेहरान, दिरहम या रियल। अब दिरहम तो है नहीं, रियल है, सो वी हैव 2 एज द करेक्ट आंसर। 3B1 चेक कर लो, मोरक्को, रबत, दिरहम, एंड रोमानिया, बुकारेस्ट, ल्यू, दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो ट्राई कैचिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड ट्राई एलिमिनेटिंग व्हाट यू डोंट नो विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू नो। आई होप इट्स क्लियर। एनी डाउट? क्लियर, राइट?
क्वेश्चन 29. अब इस क्वेश्चन में द करेक्ट आंसर हियर इज कुनलैंडाई फ्रांसिस. क्वेश्चन क्या था? विच इज द इंडियन टू बी नेम्ड एज वन ऑफ द 6 विनर्स ऑफ द प्रेस्टिजियस मैगसाइसाई अवार्ड. पूरी लिस्ट पिछले 10 साल की पढ़ के चले जाना. ये स्टैंडर्ड अवार्ड है. पिछले 2-3 सालों के तो कम से कम याद रख लेना. 2012 के फ्रांसिस थे. क्वेश्चन 30. मैच द 2 कॉलम्स. यू हैव द कंपनी नेम एंड यू हैव द ब्रांड नेम. एक एक करके चेक करो. ऑप्शंस देख लो, सारों अलग है, चेक कर लेते हैं. BMW, मिनी, क्राइसलर, कैडिला, बेंटले. सपोज नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगले पे चलो. फिएट, बेंटले, कैडिला, क्राइसलर, मिनी. फिएट हैड ओवरटेकन क्राइसलर, तो 2 का आंसर होगा 3. उस पे से पूरा क्रैक हो गया. 1 4 2 3 3 2 4 1. BMW, मिनी, फिएट, क्राइसलर, जनरल मोटर्स, कैडिला, ये तो सबको पता ही. कैडिलैक होना चाहिए था. एंड 4th one वोक्सवैगन, बेंटली. आंसर इज 1. आगे चलिए. 31st. All these questions have been given in a PDF version inside the exam strategy booster tab inside the SRT. आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए. These questions are also included in the 9 GK test on IIFT given in the GK CA Builder Institute specific testing section. Question 31 पे आ जाइए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Who was not a vice president before becoming the president of India? There is only one person, ज्ञानी जैल सिंह. याद रखिएगा. Out of this list, he was nominated by Indira Gandhi. And interestingly, later on, he turned against Indira Gandhi's son, Rajiv Gandhi, who became prime minister after her dreadful assassination. The answer here is Gyani Jail Singh. 31st answer is 4. 32nd, बहुत झगड़ा हुआ था इसको लेके when Pranab Mukherjee साहब was the finance minister. ज्यादा टैक्स निकालने के लिए सरकार की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं because the tax to GDP ratio in India is not quite favorable. जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इज व्हाट गार वाज. उसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था अपॉन कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेशन. 33rd, बहुत बढ़िया है, हम सब बॉलीवुड फैंस हैं, ये आंसर तो हमें आना ही चाहिए. चेक कीजिए, चलिए बताइए. 5 सेकंड का टाइम देता हूं, चेक करके बताइए. कोई भी एक क्लू निकाल लो, उस पर से आंसर आ जाएगा. फर्स्ट हिंदी फिल्म एवर, ये तो सबको पता, राजा हरिश्चंद्र. ये 2 ऑप्शंस उड़ गए. अब 2C है या 2A है. फर्स्ट हिंदी कलर फिल्म, किशन कन्हैया या मदर इंडिया. द आंसर इज किशन कन्हैया. सो द आंसर इज 1. तो अब एक बार चेक कर लेते हैं. फर्स्ट हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र, फर्स्ट हिंदी कलर फिल्म किशन कन्हैया, फर्स्ट हिंदी फिल्म 3A एंड लास्ट 4B, फर्स्ट हिंदी फिल्म विथ साउंड आलम आरा. आई होप दैट्स क्लियर. सो दिस इज द आंसर. 34th, in the last question, the option 3 here was given wrong. Perhaps the statement 3 is not fitting in, and this will happen in IIFT. Some of the questions are wrong. 5 to 6 questions in every paper every year are wrong. Some people say it could be intentional to check how you handle chaos, but still बाकी का तो ये ऑप्शन हमको सही दिखा था, इसलिए हमने मार्क कर दिया. आ गया ये 34th, ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. देखिए इसका आंसर है 1921. इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए. डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन डायनामिक्स. इन सिंपल टर्म्स, पॉपुलेशन. 1921 was the year in which India's population growth rate had stabilized. It had kind of stabilized because the mortality rate had started decreasing. मृत्यु दर कम होने लग गई थी और उसके बाद फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो गई थी. और यह बड़ा स्ट्राइकिंग था कि इस फेज के आसपास हुआ था. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड. अच्छा क्वेश्चन. 35th, मैच द कॉलम्स. 100% क्वेश्चन आएगा, तैयारी के साथ जाना. टॉप 20 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी मैंडेटरी बॉडीज के बॉसेस के नाम लिख के रट लेना. उनमें से 4 बॉडीज यहां स्क्रीन पे हैं. ध्यान से देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 35, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी मैंडेटरी एडवाइजरी बॉडीज ये होती हैं. इसकी लिस्ट में और क्या क्या आएगा? गवर्नर्स हो सकते हैं, प्लानिंग कमीशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, CBI हो सकता है. चेक कर लीजिए. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया दीपक संधू साहब हैं, 1 और 4 गए. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर प्रदीप कुमार हैं. कोल स्कैम और इसमें इनका नाम आया था, उनको कंप्लेंट्स गई थी. 2 4 ऑप्शन 2 गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. CEC ऑफ इंडिया संपत साहब एंड 4 2
चीफ जस्टिस वी नो वेरी वेल सदाशिवम साहब। अल्तमश कबीर साहब रिटायर हुए, सदाशिवम साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। टॉप 20-30 ऐसी बॉडीज के सारे नाम रिवाइज कर लेना। मैंने पर्सनली जितने नॉलेज बूस्टर कंडक्ट किए हैं सारी अथॉरिटीज के नाम आपको लिखवाए हैं, बस स्कैन करते चलो। आई रियली प्रे टू गॉड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए और आप लोग सारे क्रैक कर दें, डेफिनेटली करके दिखाएंगे। अब ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है 36 का आंसर क्या है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। बड़ा फेमस पार्टिकल है, पार्टिकल में इतना फेमस कैसे हो गया? द हिग्स बोसॉन पार्टिकल, बिकॉज इट्स कॉल्ड द गॉड पार्टिकल, बिकॉज डार्क एनर्जी और डार्क मैटर रिलेटेड जो रिसर्च ऑन द मिस्टीरियस स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्स चल रही है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी दैट बिग की टू दैट ग्रैंड क्लू और मिस्ट्री। 37th इंडिया होस्टेड इट, ये ब्रिक्स समिट थी, इंडिया में ही होस्ट हुई थी, इसके काफ़ी पेपर्स में फ्रंट हेडलाइंस फ्लैश हुई थी। 38 पे आ जाइए, 5.5 घंटे का फर्क है, निकाल लो कहाँ पे आएगा 5.5 घंटे का फर्क, बस दैट्स द आंसर। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 16:45 आवर्स। जीएमटी से दिल्ली का डिफरेंस कितना है, उसी क्वेश्चन को घुमा के एक टाइम दे दिया, आपसे पूछ लिया। क्वेश्चन 39 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु चल रही है, मुल्लापेरिया डैम, याद रखिएगा। क्वेश्चन 40 बड़े ही बेकार क्वेश्चन होते हैं, डेज आपसे पूछे जाते हैं, या तो दोस्तों के बर्थडेज याद नहीं रहते और ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सारे डेज याद रखना, यही आपकी फीलिंग है। आई रेसिप्रोकेट दैट, सभी लोगों को ऐसे ही लगता है। क्वेश्चन 40 द आंसर इज 4, तब ये याद ही रखना है और कोई तरीका नहीं है। 4th वर्ल्ड एड्स डे, फॉर्चुनेटली इन्होंने यहां पे ये सब बदल के आसान कर दिया, अगर आपको एक भी पता है तो आप क्रैक कर सकते हो। वर्ल्ड एड्स डे इज 1 December। आप ये याद रखना व्हाइल यू आर राइटिंग द आईएफटी टेस्ट दिस ईयर कि वर्ल्ड एड्स डे आने वाला है, उस पे से याद हो जाएगा 1 December, बाकी के उस पे से फ्लो करेंगे। आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर। 41st पे आ जाइए, विच कंट्री वर्ल्ड द गोल्ड मेडल फॉर मेंस फुटबॉल इन ओलंपिक, नॉट द इंटरनेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन फीफा। तो 41 आंसर इज मैक्सिको। फीफा किसने जीता था, फीफा कप? 42nd रैगिंग हटाने के लिए कौन सी मूवमेंट इंडिया में चल रही है, ये क्वेश्चन आईएफटी में पूछा गया था। दिस इज टिपिकल करंट अवेयरनेस, दिस इज प्रोजेक्ट अमन, प्रोजेक्ट अमन। 43rd पे आ जाइए प्लीज। Which of the following teams has been in at least one of the 10 final matches of Cricket World Cup ICC from 75 till 2011 but has never been a winner? The extremely unfortunate team is England. The others have not been in the finals. 44th. In a painting, what is the vanishing point? The answer is 3rd. Painting is an art. How you play with situations in the night, how you play with light, how you play with the subtleties of the hues and colors, and how you play with infinity when you look upon the horizon. वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है vanishing point का। आंसर इज 3, the point on the horizon where parallel lines appear to meet. 45th leader's name and party. 45th में ध्यान से देखिएगा, 1313 1212 यहीं से शुरू करते हैं। हौसनी मुबारक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इजिप्ट के डिपोज लीडर हैं, या सोशलिस्ट पार्टी। आंग सांग सूची म्यांमार बर्मा, अब फ्री कर दिया इनको मिलिट्री जंटा ने। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये याद रखना आप, शी हैज बीन अ डेमोक्रेटिक फाइटर। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज आंग सांग सूची विच इज 2-1। तो ये दो ऑप्शन 45th में उड़ गए, अब हमारे पास बच गए 3 और 4। 3 चेक करते हैं। फ्रांसवा ओला, फ्रांस के जो भी प्रेसिडेंट हैं, सोशलिस्ट, ही इज अ सोशलिस्ट। आंसर इज 3-2, आंसर इज 3rd। 46th क्वेश्चन पढ़ने में 15 सेकंड लग जाएंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए। स्टोरी आपको क्लास में बताई गई थी। द हैंडसम यंग मैन हु वाज कर्स्ड टू फॉल इन लव विथ हिज ओन इमेज दैट ही वुड सी इन वाटर एंड हेंस ही फाइनली पाइंड अवे एंड देन फाइनली टर्न्ड इनटू अ फ्लावर, नार्सिसस। तो इस तरह की ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड स्टोरी, एक आध क्वेश्चन यहां वहां से आ सकता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, द रीजन दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज narcissistic is a very good question usually asked in English, synonyms, antonyms, fill in the blanks. अब narcissistic का जो रूट है वो है narcissus और उसकी स्टोरी है ये। मेरे ख्याल से इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। Of which of these trade groupings is Burma, that is Myanmar, a member? SAARC, Burma is not a member. South Asian Association for Regional Cooperation, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता।
मर्कोसुर हो नहीं सकता, लैटिन अमेरिका का है। ASEAN is the only answer. Association of Southeast Asian Nations, Asian Tigers का जो ग्रुपिंग है। एशियन टाइगर्स उनको इसलिए बोलते थे बिकॉज थ्रू 1970s and 80s their economies were growing at the rate of 6%, 7%, 8% per annum and finally they crashed in 1997 Asian crisis. 48. Arrange the following Indian rivers from north to south. तो देवियों और सज्जनों, मैं आपको दे रहा हूं आपका ये हॉट सीट का सवाल और अब आपके पास है 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन 100% कौन बनेगा करोड़पति से उठाया गया है, तो केबीसी देखते चलो। एंड द आंसर टू दिस 48 यू हैव टू अरेंज इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बताइए कौन सा होगा। तो सभी ने सब सही जवाब दिए। देखिए सबसे पहले जवाब किसका आया, 3142 इज द राइट आंसर। झेलम, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, नॉर्थ टू साउथ। तो कौन बनेगा करोड़पति से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बॉस IIFT में, नॉट बैड। हाँ 49th, India keeps on inviting friendly heads of state of friendly nations to attend the Republic Day ceremony because the Republic Day in India is considered the day when the Indian state really got its existence. Independence तो पहले मिल गया था, but in the absence of a formalized constitution that laid down the rules for the creation of the state and all its institutions, India as a state did not exist. इसीलिए इस दिन को इतना महत्व दिया जाता है। और इसका क्वेश्चन ये है कि नेम द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, उसका आंसर था ली म्योंग बाक। डिफिकल्ट नेम्स टू रिमेंबर। 50th, 3G spectrum auction, very successful. The government earned billions of dollars और इसकी वजह से ही कैग ने अपनी 2G रिपोर्ट में अनुमान लगा लिया कि 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। The estimate initially came from the cost of spectrum the government managed to recover or auction in 3G. अगर इतना नहीं कमाते तो 2G पे कैग की एडवर्स रिपोर्ट भी नहीं बनती। वेरी इंटरेस्टिंग। बट एनीवे, क्वेश्चन 50, which companies got the maximum? The answer here is 4th, ABND, Arcom, Airtel, Aircel, Vodafone did not. तो एक बार 2G 3G ऑक्शंस में बिडर्स और विनर्स की लिस्ट पे नजर मार लेना। 51, विच वन ऑफ 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बी पेशेंट विथ मी और क्विकली इसको हम फिनिश कर लेते हैं। 51 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैंक्स हैज फॉर्म्ड द जॉइंट वेंचर इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर? द करेक्ट आंसर हियर इज कैनरा बैंक, HSBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कैनरा, HSBC, ओरिएंटल, OBC, दीज थ्री हैव टुगेदर फॉर्म्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए। 52, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन एंड कंट्री। अब इसमें फिर से वही टेक्निक लगाई है, A32, A44, A24, A14। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, चेक कर लीजिए। A, NATO। नाउ NATO was formed to counter the communist threat after Second World War, जब कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। It has to be located in Europe. NATO, इसमें से चेक कर लो। अब Brussels seems to be a good option, A4, but then we don't know, right? So लाइट आ गई, ओके। A4, so Brussels and 4th Belgium. अब there's another way you can solve this question. Connect the location with the country. You know very well Brussels is in Belgium. ये तो सबको पता होगा, ज्यादातर को पता होगा। तो 4 चेक करो कहां आ रहा है। कोई भी एक क्लू क्रैक कर लो और आपका काम हो जाएगा। The correct answer here is option 2. That is the right answer. 52nd, option 2. I hope that's clear. 53rd पे आ जाइए। And what we just saw, question 52, is definitely not easy. Maybe in the first round that you want to solve, you can leave it. Maybe even in the second round, you can leave it. अगर 100% सर्टन नहीं हो या ऑलमोस्ट सर्टन नहीं हो, मत अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग में नुकसान हो जाएगा। 53rd पे आ जाइए। Women CEOs and the respective company and the locations. Very interesting. 3 कॉलम की मैचिंग थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। Marissa Mayer has been in news because of the complete shift in culture of Yahoo that has happened after she has come. पिछले 1 साल से, और Yahoo की वैल्यू भी बढ़ी है। Marissa has to be Yahoo। A3, A33 दो जगह आया है। अब Yahoo का लोकेशन दे रहे हैं वो या तो कैलिफोर्निया या कनेक्टिकट। अगला B से चेक करो, B का आइडिया नहीं है, C पे आओ। उर्सुला बर्न्स हैज बीन अ वेरी फेमस CEO ऑफ Xerox, तो चेक करो C के साथ Xerox जुड़ रहा है क्या? C4, answer has to be 3rd, A32, B14, C43, D21. So although we may not know the locations, doesn't matter, we can still crack it because बाकी के clues पता है। बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के अरेंजमेंट क्वेश्चन की तरह है। 54th, तो 53rd का आंसर था 3rd।
54th, acquiring company with the target company. United Breweries Group, Mr. Vijay Mallya acquired Shaw Wallace, दोनों लीकर बिजनेस में है. B1, Mahindra and Mahindra acquired Schonwies Automobile. C2, Price Waterhouse Cooper, RSM Ambit audit firm, Holcim Ambuja Cement, both are cement companies. Answer is 4th. 55, match the company and the tagline. अब देखो आपको इसमें से क्या क्या आता है, उस पे से चेक करो. टोयोटा, touch the perfection. Option 1 and 4 are gone. Toyota talks about perfection. ये दो हैं. B1, BSNL, express yourself connecting India. BSNL has the best pan-India spread other than Mumbai and Delhi, where it is MTNL. Answer has to be option 3rd. Airtel, express yourself, trump of MTNL, the easy way to say it. Answer is 3rd. You would be very surprised to hear that BSNL and MTNL both are loss-making PSUs. Interesting, isn't it? 56th, इंडियन बैंक्स एंड द ब्रांड एम्बेसडर्स. ऐसे क्वेश्चन आजकल एमबीए एंट्रेंस में काफी आ रहे हैं. ब्रांड एम्बेसडर्स, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेना. चेक करो. A3, A2, A4, कैनरा बैंक हेमा मालिनी, कैनरा बैंक वेंकटेश प्रसाद. बोथ आर फ्रॉम साउथ. द चांसेस ऑफ कैनरा बैंक वेंकटेश प्रसाद आर हाई. जस्ट अ वाइल्ड थॉट, बट एक्चुअली इट इज करेक्ट. A3 तो है ही. B4, देना बैंक जूही चावला, बैंक ऑफ राजस्थान हेमा मालिनी. एब्सोल्युटली राइट. C2 एक ही जगह है. आंसर इज 4th. तो इसमें कोई एक पता हो और अगर वही एक ऑप्शन में है तो यू आर लकी, यू कैन क्रैक इट. 56th आंसर इज 4th. 57th, अ क्वेश्चन विच वॉज बेटर लेफ्ट आउट. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये होने वाला नहीं है. अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है फॉर अ साइंस स्टूडेंट, बट अदरवाइज फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट इट वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट. नॉन साइंस बैकग्राउंड. मैच the testing method instrument with the use of instrument. Squid, actionometer, dilatometer, ebullioscope, that's what it writes, and rheometer. The correct answer to this is 1. So squid, magnetic field. Actionometer you have for heating of power radiation. Dilatometer, coefficient of thermal expansion. Ebullioscope, boiling temperature of a liquid. Rheometer, viscosity of a fluid. Very very technical question. डोंट वरी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देना, नो टेंशन एट ऑल. हर किसी को सब कुछ नहीं आ सकता. 58, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेट्स विथ अ गुड साइजेबल कोस्ट लाइन. आंसर इज गुजरात. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर सी पोर्ट्स. मेजर सी पोर्ट वॉज द क्लू. 59, ओल्ड नेम और न्यू नेम को मैच करो. थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. साउथ वेस्ट अफ्रीका, रोडेशिया, नॉर्दर्न रोडेशिया. अब एक क्लू मुझे मिल रहा है कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ऊपर नीचे चेक करो. रोडेशिया एंड नॉर्दर्न रोडेशिया. C2, रोडेशिया, जिम्बाब्वे. B4, ऑप्शन 1 and 3 गए, बच गए 2 and 4. फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 2. 59th आंसर इज 2. A3, B4, C2, D1. साउथ वेस्ट अफ्रीका, नामीबिया, रोडेशिया, जिम्बाब्वे. नॉर्दर्न रोडेशिया, जाम्बिया. एबिसिनिया, इथियोपिया. ये भी बहुत अच्छा क्लू है, पहले एबिसिनिया ही कहते थे इसको, इथियोपिया. आंसर इज 2. और आज का हमारा आखिरी जी के क्वेश्चन, मैच द कंट्री, सिटी, रिवर. बहुत टिपिकल हैं ये IFT के, तैयारी के साथ ही जाना है अपने को. क्वेश्चन 60, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है. अब चेक करो. A34 जर्मनी, ड्रेसडन. 4th इज एल. वो स्पेलिंग में कहीं कहीं छोटी छोटी एरर्स हैं, प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दैट. C13 पोर्चुगल, लिस्बन दैट्स द कैपिटल, एंड चिटागोंग इज बांग्लादेश. एंड सो यू नो द आंसर इज 4th. So my dear friends, in this small session that we have taken on IFT strategy, I have tried to cover everything which is important from last minute perspective, and I would like to take you once again through the initial slides for revision's sake. As soon as you finish your IFT test, that very Sunday we are going to put up a complete analysis of the test in the SRC. उसको check कर लीजिएगा.
It's a good test. Give your best to it without getting scared. Ultimately, syllabus तो वही है जो आपने अभी तक पढ़ा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. All the important facts that we have covered अच्छे से ध्यान में रखिएगा. कैट से पैटर्न बहुत अलग है in terms of presentation alone. But if you strategize properly, कोई टेंशन नहीं है. 6 सेक्शंस होंगे, ध्यान रखिएगा. डिफरेंशियल मार्किंग होगी मैक्सिमम मैथ्स और डीआई के लिए, मिनिमम जीके और इंग्लिश के लिए. कम से कम 60 मार्क्स लाने की हमें कोशिश करनी है. एंड दीज आर द पावर टिप्स. सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से फिर से देख लीजिए, मेंटली अच्छे से खुद को समझा लीजिए, and believe in your potential because you have worked for it. So there is no reason why you should not be able to do it. SRC को अच्छे से यूज कीजिए and I am sure you will do very well. So finally, my dear friends, on behalf of PT Education Headquarters, I Sandeep Manudhane wish you all the best for your IFT test. Do well, करके दिखाएंगे.